Dear student, I am going to start chapter 2 of English supplementary reader book. Dear student, हमने इंस्पायरिंग स्टूडेंट की स्टोरी रीड की थी. अब हम नेक्स्ट स्टोरी को रीड करेंगे. Abraham Lincoln was very fond of reading book. In his childhood, he came to know that his teacher, Mr. Andrew Crawford, had the book biography of George Washington. He went to Mr. Crawford and said, "Do you have biography of George Washington? I will be grateful if you lend it to me for a couple of days." Mr. Crawford said, "Yes, I have got the book, but I don't lend it to anyone lest it gets careless or lost." Lincoln besieged him, and Mr. Crawford agreed to lend him the book. For 2 or 3 days, Lincoln was wrapped in reading the book without caring for any food. After completing his reading, he fell asleep at night. It rained in cats and dogs that night, and as Lincoln was in deep slumber, he could not keep the book away at a safer place. As a result, it got wet and soiled. Lincoln was very sad. He told the fact to Mr. Crawford. Mr. Crawford was very angry. He said, "The book was very precious to me. It was spoiled because of your negligence. You will have to pay me its cost." Lincoln said, "I have no money, but I can work for you and thus pay you back the cost." Mr. Crawford agreed. Lincoln worked for Mr. Crawford for 3 days. He cut grass in the field. When the cost was recovered, Mr. Crawford returned the book to Lincoln. Thus, Lincoln earned the book with his hard work. When he grew up, Lincoln became the President of America. It was the result of his truthfulness and self study. It is true the books have great importance in our life. अब्राहम लिंकन को बचपन में किताबें पढ़ने का बहुत शौक था. वह अपने शिक्षक एंड्रू क्रॉफोर्ड के पास आए. पुस्तक जो कि पुस्तक जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी पर आधारित थी. उन्होंने अपने टीचर से कहा कि क्या आपके पास जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी है? यदि आप 1-2 दिन के लिए मुझे उधार देते हैं तो मैं आपका आभारी रहूँगा. उन्होंने कहा, हाँ, मुझे किताब मिल गई है, लेकिन मैं इसे उधार देने या खो जाने वाले किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देता हूँ. लिंकन ने उसे परेशान किया और मिस्टर क्रॉफोर्ड ने उसे पुस्तक उधार देने के लिए सहमति दे दी. 2 या 3 दिनों के लिए लिंकन किसी की भी बिना परवाह किए पुस्तक को पढ़ने में व्यस्त थे. रात को जब वे सो गए, उस रात बहुत तेज बारिश हुई और लिंकन गहरी नींद में थे. वह किताब को सुरक्षित स्थान पर नहीं रख पाए. परिणाम स्वरूप वह गीली हो गई और बहुत उस पर धूल हो गई थी. उन्होंने क्रॉफोर्ड को यह सारी घटना बताई. क्रॉफोर्ड उनसे बहुत गुस्सा हो गए. उन्होंने कहा, पुस्तक मेरे लिए बहुत कीमती थी. यह खराब हो गई है क्योंकि आपकी लापरवाही से. मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा लिंकन ने कहा. लिंकन ने फिर कहा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ और इस तरह आप क्रॉफोर्ड को वापस भुगतान कर सकते हो. लिंकन ने मिस्टर क्रॉफोर्ड के लिए 3 दिनों तक काम किया. उन्होंने मैदान में घास काटी. जब लागत वसूल हो गई तो क्रॉफोर्ड ने लिंकन को पुस्तक भेंट में दे दी, अपनी कड़ी मेहनत को देखकर. और जब वो बड़े हुए तो अमेरिका के राष्ट्रपति बने. यह उनकी सत्यता और स्वाध्याय का परिणाम था. वन सुल्तान ऑफ बुखारा, नुही इब्न मंसूर फेलिल हकीम एंड वैद्य from distant places came to treat the Sultan, but he was not cured. One day, a man came to the Sultan's place and told him about a young Hakim. The Sultan commanded, uh, summoned the Hakim to the place. He was issued with great honor. The Hakim started treating the Sultan, and after a few days, he was cured of his disease. The Sultan decided to reward him. He asked to the Hakim, "You have saved my life. I am pleased with you. Ask anything you like,
as a reward from me. The young Hakim was generous and was not greedy. He did not want any wealth from the Sultan. He knew that the Sultan had a very rich library. He considered books as the real wealth. So he said to the Sultan, "If you are really pleased with me, please allow me to read books from your library." The Sultan was amazed to listen to this strange request. He said, "Why did you make such a request? If you had asked for wealth, I would have given you a lot of it." The Hakim folded his hands and said to the Sultan very politely, "To me, there is no wealth in this world greater than knowledge. Please give me what I have asked for." The young Hakim, after a few years, became a well known mathematician. His name was Hakim Ibn Sina. बुखारा सुल्तान एक बार बुखारा के सुल्तान जो कि बीमार पड़ गए थे और उनको देखने के लिए दूर दूर से कई हकीम और वैद्य आए थे, लेकिन वह उनसे ठीक नहीं हुए। एक दिन एक आदमी महल में आया और उसे एक युवा हकीम के बारे में बताया गया। सुल्तान ने हकीम को अपने पास बुलाया। उसे बहुत सम्मान के साथ अभिभूत किया गया था। हकीम ने सुल्तान का इलाज करना शुरू कर दिया और कुछ दिनों के बाद वह इलाज से ठीक हो गए। सुल्तान ने उसे पुरस्कृत करने का फैसला किया। उसने हकीम से कहा, "आपने मेरे जीवन को बहुत अच्छा बनाया है। आप मुझसे जो कुछ भी चाहोगे पुरस्कार के रूप में, मैं वो आपको दूंगा।" युवा हकीम बहुत उदार था और लालची नहीं था। वह कुछ नहीं चाहता था। तो सुल्तान जानते थे कि उसके पास वो जो हकीम था वो जानता था कि सुल्तान के पास एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है। उन्होंने पुस्तकों को धन माना है, इसलिए उन्होंने सुल्तान से कहा, "यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न है तो कृपया मुझे अपने पुस्तकालय से पुस्तक पढ़ने की अनुमति दें।" सुल्तान इस विचित्र अनुरोध को सुनकर चकित रह गए। उन्होंने कहा, "आपने ऐसा अनुरोध क्यों किया? यदि आपने धन मांगा था तो मैं आपको धन भी दे देता।" हकीम ने अपने हाथ जोड़ लिए और बहुत विनम्रता से सुल्तान से कहा, "मेरे लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। कृपया मुझे वही दीजिए जो मैंने आपसे मांगा है।" कुछ वर्षों के बाद यह युवा जो हकीम था वह एक प्रसिद्ध गणितज्ञ बन गया। उनका नाम हकीम बने सीना था। आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।